Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sorry. Next student, what happened to all? Sir, rest of students are coming. क्या हो गया बाकी को? सबके सब सो रहे हैं क्या आजकल? आजकल ध्यान नहीं दे रहे बहुत सारे स्टूडेंट. I don't know what happened to them. They think physics is so much easy. Huh? I don't know. Let's see. Tell me where we completed before this lecture. Sir, we completed till the resistance in Parallel series. resistance. Parallel resistance. We have to start with parallel resistance. Acha, we explain the first concept, the derivation of parallel. This we have complete na. R is equal to R1 plus R2. Yes, sir, we have completed this. Okay. Now we are discussing series, and for parallel, I have taken one example. Now suppose we have R1 2, R3 3, and R4 4. So total resistance of circuit is what? 2 3 4. The total is what? 9. Okay, like that. We are discussing. Yes, sir. 9. Sure, na? Okay. Now we are discussing second part. Before going Yes, ahead, sir. I want to recap just a brief. Tell me in series what will we get split up and what is the constant? Sir, the current will be constant and voltage will get split up equally. Good, correct. So current all we know because there is no split up only straight wire. R1, R2, R3 are connected in straight form like straight wire. There is no splitting form. There is no splitting phenomena we have. Okay. Yes, sir. If there is a split, then only current also split. But here no space available for splitting. That's why current is constant and resistor is different value resistor, different potential will be utilized by it. Okay. So R1 have maximum resistance value, he will be get maximum potential. R2 less, so R2 will be less, and R3 medium, so R3 will be get according to the potential. And whatever the potential we are providing, that will get split up across R1, R2, R3. That is the V1, V2, V3. That's how our concept came. What V is equal to V1 plus V2 plus V3. And with the help of that and Ohm's law, we have derived R is equal to R1 plus R2 plus R3. And all we have studied related to this. Now we are discussing about parallel concept. Now, pay attention parallel. When two resistors are connected between the same points, they are said to be connected in parallel. Now, pay attention. Like we have circuit diagram. According to this, we have to understand R1, R2, R3. So both resistors we have. The left one side all are 1, 2, 3. Okay. Whatever the left one part is 1, 1, 1 for R1, R2 conductor, and the second part of the right hand side that are 2, 2, 2. So all one are connected to one point or all two are connected to second point. Okay, and both are across to the voltmeter. This way connection that we call as parallel. Or we can take another example. Suppose I have pen. Okay, pen cap or pen cap are connected to one point, and what are the ending of the pen that are connected to one point. That type of connection is not our parallel connection. The same concept we are discussing here. Now we are discussing next part. When a number of resistors are connected in parallel, then the potential difference across each resistor is same, which is equal to the voltage of battery applied. Here we have to understand. Suppose we have a potential. Now take an example. Suppose पानी है, what I say, water है, water pipe, whatever the water pipe pressure, जितना भी प्रेशर है वो तीनों पाइप के वाटर के ऊपर उतना ही रहेगा. फर्क इतना रहेगा कि पाइप का स्पेस कितना है, वो हिसाब से पानी अलग 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 स्प्लिट हो जाएगा. लाइक एक बड़ा पाइप और बड़े पाइप के फॉर्म में कनेक्ट में तीन अलग अलग पाइप है, वन बिग, वन मीडियम, वन स्मॉल. अभी जितना स्पेस रहेगा उतना पानी एक पाइप से फ्लो हो जाएगा, दूसरे में जितना पानी का स्पेस रहेगा उतना, और तीसरे में होगा. तो जितनी जिसकी स्पेस रहेगी उतना ज्यादा वाटर फ्लो हो जाएगा, दूसरे में भी वैसे और तीसरे में वैसे. लेकिन जो पीछे से कंटिन्यूसली प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर तो मेंटेन है ना, बट डिपेंडिंग ऑन स्पेस के हिसाब से पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन प्रेशर तो मेंटेन है.
तो पानी का फ्लो है, पानी का प्रेशर है, बैक से पोटेंशियल का कंटिन्यूअसली आ ही रहा है, तो वो प्रेशर तो डेवलप ही रहेगा थ्रू द सर्किट। तो भले तुम लोग पैरेलल कनेक्शन रखो, जहां से भी सोर्स है, जहां से भी एनर्जी आ रही है, वो तो कंटिन्यूअसली प्रेशर लगाएगी। डिपेंड करता है तुम्हारे वायर के अंदर का स्पेस कितना है या वायर का थिकनेस कितना है। मतलब सपोज थिक वायर रहेगी तो थिक वायर में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, थिन वायर में से कम इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, लेकिन पोटेंशियल तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, भले थिक हो या थिन हो, क्योंकि पीछे से तो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली 220 वोल्ट ही आ रही है। 220 फॉर R1 के लिए भी, 220 फॉर R2 और 220 फॉर R3 के लिए भी। सो एवरी रेजिस्टेंस हैव इक्वल पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल हमारा सोर्स एक ही पॉइंट से निकल रहा है और एक पॉइंट से आके प्रेशराइज कहाँ पे कर रहा है, R1 R2 R3 के ऊपर। वाटर अलग अलग स्प्लिट हो रहा है, करंट इज स्प्लिटिंग द डिफरेंट पार्ट, वो थिकनेस के ऊपर रहता है। जैसे पाइप की साइज है वो हिसाब से पानी फ्लो हो रहा है, वैसे ही वायर जैसे कनेक्ट करेंगे, थिक वायर थिन वायर, वो हिसाब से ही करंट भी हमारा थिक थिन वो हिसाब से फ्लो होगा। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। सपोज वी हैव टू R1 एज अ हीटर, R2 एज अ बल्ब एंड R3 एज अ टीवी, ठीक है, तीनों अलग अलग है। तो हम लोग को सबसे ज्यादा करंट किसको देना पड़ेगा, हीटर को, एज वी नो। अगर हम लोग ने एक एग्जांपल लेते, सर नहीं तीनों को हम लोग ने इक्वली वायर दे दिया और हमारा हीटर है, लेट कंसीडर दैट, ओके। तो बेटा व्हाट हैपन एक्चुअली, हीटर रिक्वायर मैक्सिमम करंट, विदाउट दैट हीटर कैन नॉट वर्क, ओके। हीटर को जितनी भी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मिलेगी, देन ओनली हीटर वर्क मिलेगा। अभी तुम लोग ने इक्वल वायर देने की वजह से हीटर क्या करेगा, व्हाट एवर रिक्वायर अमाउंट ऑफ करंट वो खींचने की कोशिश करेगा, इट विल बी मेकिंग ए लोड, ट्राई टू टेक दैट मच अमाउंट ऑफ लोड, कंटिन्यूअसली वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, लोड लेगा, और ये कंटिन्यूअसली वेरिएशन आके आके एक टाइम पे प्रेशराइज होके द हीटर विल बी डू डिफ्यूजन, हीट डेवलप हो जाएगी, स्पार्क हो जाएगा, और हम लोग को कुछ कभी कभी कैसे होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं बट स्पार्क डेवलप होकर आग वगैरह लग सकते हैं, दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट। इसके लिए तो अलग अलग हम लोग घर के भी अप्लायंस सभी में देखो, जिसके पास हीटर एसी फ्रिज है तो उनके अलग अलग शॉर्ट के पॉइंट रहते हैं, सर्किट के पॉइंट, और उनके लिए थिक वायर यूज की जाती है। जैसे हम लोग उनकी प्लग की पिन भी देखो, इफ यू ऑब्जर्व पिन, तो बिग पिन वी आर यूजिंग, बिग वायर वी आर यूजिंग, बिकॉज बिग मतलब उसकी थिकनेस ऑफ वायर ज्यादा है। थिक क्यों है, बिकॉज दे रिक्वायर मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा देन ओनली दे वर्क प्रॉपरली, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली। क्लियर माय पॉइंट। तो जितनी ज्यादा थिक उतना ज्यादा करंट। सेम वे वी आर डिस्कसिंग, जैसे पानी जितना ज्यादा, जितना बड़ा पाइप उतना ज्यादा पानी फ्लो, बट पोटेंशियल तो हर एक के लिए अक्रॉस के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर पीछे से उतना ही मेंटेन, अगर 10 पास्कल का प्रेशर है तो 10 पास्कल का प्रेशर हर पाइप के ऊपर उतना ही रहेगा, बट थिकनेस के ऊपर तुम्हारा पानी अलग अलग लेवल में जाएगा। वैसे ही थिकनेस ऑफ वायर इज मैटर, ओके। थिकनेस ऑफ वायर, जितने वॉल्यूम, जितनी साइज का बड़ी साइज की वायर रहेगी, that much current will be flow, like that way we are discussing. So at the सर end I want to say कि समझो तुम लोग के पास 20 एम्पियर का या 10 एम्पियर का करंट है हमारे पास, ओके। तो 10 एम्पियर करंट, एक एग्जांपल 12 और 12 एम्पियर करंट भी है, ओके। 12 एम्पियर करंट में से R1 कितना लेगा करंट, R1 लेट कंसीडर 6 ले लिया, और बाकी का करंट दूसरे ने 2 ले लिया और तीसरे ने 4 ले लिया, तो टोटल 12 एम्पियर ही मिलेगा। तो करंट आल्सो गेट स्प्लिटिंग। अगर तुम लोग देखोगे हाउस के सर्किट में हमें करीब करीब 15 एम्पियर करंट मिलता है, घर का जो एक्चुअल सर्किट है उसमें हमें करीब करीब 15 एम्पियर करंट मिलता है, और उसमें से मैक्सिमम करंट हम लोग जो बड़े अप्लायंस है उनके लिए थिक वायर लगा के वी आर कन्वर्टिंग 10 एम्पियर करंट, और बाकी छोटे मोटे अप्लायंस के लिए 5 एम्पियर के करंट के आसपास का करंट हम लोग देते हैं। सो इन हाउस ऑल्सो वी आर डूइंग सेम वे। सिमिलरली हम लोग एक्चुअली सर्किट में भी एक्चुअली वी आर डूइंग सेम वे ऑफ कनेक्शन। सो टोटल एम्पियर ऑफ करंट गेट स्प्लिट अप इन 3 इन वेरिएशन। तो वही बोल रहा हूँ, अगर 20 है तो 20 में से पहले ने 10 ले लिया, दूसरे ने 5 ले लिया, और तीसरे ने भी 5 ले लिया, like that way, या 4 5 like that way, all that will get split up. So at the end what we have derived here, that is nothing but I is equal to जितना भी करंट दे रहा है वो R1 R2 और R3 के करंट के अक्रॉस के टोटल के बराबर रहेगा। So I is equal to I1 plus I2 plus I3, that we have to get conclusion from this. Clear my point? मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला कंसेप्ट, जितना भी करंट है वो करंट पूरा हाँ स्प्लिट सर, होता है, जितना मैं पानी दे रहा हूँ वही पानी तीनों पाइप से जा रहा है, और तीनों पाइप का पानी ऐड करो तो जितना पानी दिया था उसके बराबर मिल जाएगा। वैसे ही करंट की बात कर रहा हूँ ना।
The next point what we have, the different amount of current flow through each resistance, which is depending upon the value of the, मैंने बोला ना value of the resistance of, but the current flow through each parallel resistance taken together is equal to the current flowing in the circuit as whole. जो definition बोला, जो statement बोला, उसी related का part explanation किया, वही यहाँ पे I is equal to I1, I2, I3 वही concept derive किया. Now pay attention here. What we do now? Now we are applying Ohm's law. वहाँ पे भी हम लोग ने Ohm's law apply किया था for series. Now here also we are applying Ohm's law. ना, but Ohm's law applying for I के लिए. और मैंने यहाँ पे क्या बोला, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, वोल्टेज कांस्टेंट है, वहाँ पे क्या कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था. सो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ऑल वी नो. और I की वैल्यू निकालनी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R. सो I, the whole circuit current I is equal to V upon R. Individual I1, for individual I1 that we say as V upon R1. देखो यहाँ पे इक्वेशन बना रहा है, equation I1 is equal to V upon R1, second one I2 is equal to V upon R2, and I3 is equal to V upon R3. And the first one I is equal to V upon R. V is constant for each condition, each term. That's why whatever the 1, 2, 3, 4 ये चारों की value we are substituting above equation, which is I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now ये पूरी value हम लोग सबकी चारों की value equation above equation में डाल दी, जिसकी वजह से equation नीचे मिला substituting that V upon R is equal to V divided by R1 plus V divided by R2 plus V divided by R3. Now what is the right hand side? From that we are keeping V outside. ठीक है, V outside ले लिया, bracket के outside V are taking, and V will be get cancel, क्योंकि यहाँ पे भी V upon R है left side में, right hand side में भी bracket से V common निकाल के बाकी same term लगती है. So V and V will be cancel. So inside the bracket, and here what we get at the end of the result, that 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. The result or result conclusion हमें क्या मिला कि टोटल, अगर पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल वैल्यू लेनी पड़ेगी. रेसिप्रोकल कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, दैट इज नथिंग बट योर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट. ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव क्या हो गया पैरेलल के लिए, वन सेकंड आई एम रिपीटिंग, दैट इज व्हाट 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. वही सीरीज में हम लोग ने क्या देखा था, R is equal to R1 plus R2 plus R3. For series, R is equal to R1 plus R2 plus R3. And for parallel, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now till here any doubt? जो डिराइव हुआ फॉर्मूला, till here any doubt? No sir. Now अभी हम लोग इसमें से एक No, कंसेप्ट वाइज, वैल्यू वाइज, न्यूमेरिकल देखते हैं, और फिर मैं जो बता रहा हूँ उसके रिलेटेड के कंसेप्ट पे पॉइंट है. Now let's consider we have R1, R2, R3. Each register value is 3. तीनों रजिस्टर की वैल्यू मैंने क्या बोला है, 3 है. तो ये 3 वैल्यू निकाल के टोटल रजिस्टर ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा. Put a value 1 upon R1 as a 3, 1 upon R2 as a 3, 1 upon R3 as a 3. So total answer become what? All of you tell me, or you 1. send your answer or chat. जो chat box है उसके मैं खोल chat box पे डाल देना आंसर. What answer you get, all of you? Good, Sathak, correct answer. Vihan, good. Other student where? हाँ, good. How it get? All of you understand, or just किसी ने लिखा तो वही तुक्का मार रहे हो like that? I don't know. Most of you sometimes copy, अरे हाँ उसको आ गया. That's why maybe I have to also write the same. Huh? Now I will explain the answer. Please pay attention. Just wait for 2 seconds. I have to minimize my slide. Pay attention. All we know 1 upon 3, 1 upon 3, 1 upon 3. Now tell me that if base is equal, okay, so above also we get add. So 1 upon 3, 1 upon 3, 1 upon 3. So 3 will be base will be equal, and the above value 1, 1, 1 will be at add. So 1 plus 1 plus 1, that is nothing but 3, and 3 divided by 3, that is nothing but 1. So 1 upon R is equal to 1 upon 1. Please attention here. Left hand side we have 1 upon R is equal to 1 upon 1. And if we reciprocal that, due to which we get R value. Because left hand side we are taking 1 upon R, not we are taking R. It's a 1 upon R. So reciprocal of that value will be get what? Answer 1 upon 1 is nothing but 1. Now same way we have to try another question. I am giving the value for each register 2, 2, 2. Now I have to check how many students giving a correct answer.
R1, R2, R3, each resistor value is 2. Calculate the term, calculate the answer. Sarthak, okay. I don't know how many students give correct answer. Let's check. The answer 2 by 3 is correct. Now pay attention how it's possible. 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2. The base 2, the above value become what? 3 by 2. So 1 upon R is equal to 3 by 2. Please pay attention. 1 upon R is equal to 3 by 2. And if we reciprocal, so it's become what? R is equal to 2 upon 3, which is nearest to 0.67. Good. Correct. Now I am taking another numerical which is correlated to this. And before that, I have to ask a few of you, in series, what constant, which value constant, parallel, sorry, in series, current constant or voltage constant? Sir, current constant. Series, current constant. Current constant. And parallel? And in parallel, voltage constant. That concept you have to understand. Now pay attention related to this. We have a numerical. I am opening a new slide. So you will be understand what exactly we are discussing and what concept we have to understand. Okay, just wait. I have to close my PPT. Wait. Yeah, here we have, where is it? Wait a few seconds. Now all of you able to see this numerical? Example 5. Yes, sir. Yes, Sir. sir. Okay, now we are discussing for first. पहले equation से पहले numerical से we'll discuss. And if you understand this concept, you will be understand the whole numerical. Okay, इसके related बेटा हर साल compulsory एक numerical आता है. तो पहले simple one करेंगे और फिर थोड़ा सा difficult one करेंगे. Now understand the first question. Okay, I am explaining the first question and answer कैसे करना है वही देखते हैं. Find the current I. Okay, we have to find the total current of the circuit. Now pay attention what they ask me. Find the current I passing through the voltage, current I passing through and the voltage across the each resistor. Each resistors के across कितना voltage है वो find out करना है और पूरे और हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है. बस दो चीजें. तो बेटा ये जो डायग्राम दिया पहले समझो. देखो वोल्टेज टोटल सर्किट का कितना है 7 वोल्ट. ऑल यू अंडरस्टैंड. और रजिस्टर दिए 3 different. That is what one is 100, second one is 400 and third one is 200. Now pay attention. क्या हमारे पास टोटल सर्किट का वोल्टेज है? यस, टोटल सर्किट का वोल्टेज है 7 वोल्ट. क्या हमारे पास टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है? नहीं. तो सबसे पहले व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. अगर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज मालूम है, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द टोटल सर्किट करंट. टोटल सर्किट का करंट निकालने के बाद ही हम लोग अलग अलग वैल्यू बाद में निकाल सकते हैं. सो टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा. द टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड ईच अदर इन टर्म्स ऑफ व्हाट. एक दूसरे से रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल. और पैरेलल का फॉर्मूला सबको मालूम है. सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज. ओके, तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है? सीरीज में. तो सीरीज का फॉर्मूला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो वी आर एडिंग 100 प्लस 400 plus 200. The total resistance become what? 700. Clear? Total circuit का resistance कितना हुआ? 700. अभी total circuit का resistance अगर 700 हुआ तो voltage what we have? Voltage is 7 volt.
तो मुझे बोलो टोटल वोल्टेज भी मालूम है और टोटल रेजिस्टेंस भी मालूम है, तो टोटल करंट निकाल पाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस 700, टोटल वोल्टेज 7, सो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ मालूम है, तो V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू टोटल सर्किट का करंट निकालने के लिए हमें क्या करना, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है टोटल सर्किट का 7 और टोटल रेजिस्टेंस 700, सो 7 डिवाइड बाय 700, प्लीज अंडरस्टैंड 7 डिवाइड बाय 700 इज इक्वल टू करंट, और वो करंट किसका है, पूरे सर्किट का करंट है। तो 7 डिवाइड बाय 700 दैट इज नथिंग बट 0.01 एम्पियर। क्या ये टॉपिक तक सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। समझ में नहीं आया प्लीज आस्क। मैंने सिंपल किया है, Yes, sir. तीनों रेजिस्टेंस में थे तो तीनों रेजिस्टेंस को मैंने ऐड कर दिया और ऐड करके टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला। एक पार्ट समझ में आया? पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी रेजिस्टेंस है तो पूरे सर्किट के पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन में जहाँ पे हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज दिया ही रहेगा, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों भी मालूम है तो हम लोग करंट निकाल पाएंगे। तो दैट्स वी आर डिस्कसिंग। टोटल रेजिस्टेंस 700 आ गया, टोटल पोटेंशियल 7 है, टोटल रेजिस्टेंस तुमने कैलकुलेट किया तीनों को ऐड करके, टोटल पोटेंशियल 7 वोल्ट है। तो हाँ ओम सर। ऑल वी नो ओम्स लॉ इज इक्वल टू I is equal to V upon R. So 7 divided by 700. So answer become what we get 0.01 ampere. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? So 0.01 एम्पियर ये है क्या हो गया हमारा करंट हो गया पूरे सर्किट का। ना बेटा हम लोग ने जो कंसेप्ट पढ़ा वो कंसेप्ट अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पे अटेंशन, ये सर्किट किसका है, सीरीज का सर्किट है। अभी मुझे बताओ सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? ऑल यू नो सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, स्प्लिट होता है, करेक्ट है। तो सीरीज में अगर करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे कैलकुलेशन इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि 100 जो है उसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो होगा, 0.01 एम्पियर। 400 के अक्रॉस भी कितना होगा, 0.01 एम्पियर। और 200 के अक्रॉस भी करंट कितना होगा, 0.01 एम्पियर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। तो सीरीज में सभी जो तुम्हारे रजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.01 एम्पियर। क्योंकि हमारा कंसेप्ट वही है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटर है ही नहीं तो पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज योर व्हाट 0.01 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? सभी अप्लायंस जो तुम्हारा रजिस्टर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उनके अक्रॉस करंट 0.01 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। अभी ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है? नाउ मुझे बोलो अगर 100 एम्पियर के सॉरी 100 ओम के अक्रॉस 0.01 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो दो वैल्यू तो मिल गई। 100 रजिस्टर वैल्यू जो है, अभी फर्स्ट रजिस्टर जो 100 है उसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो V इज इक्वल टू IR, हमारा फॉर्मूला मालूम है सबको, V इज इक्वल टू IR, इसमें कि हम लोग को मालूम है रजिस्टर में ऑलरेडी 100 दिया है, करेक्ट है, और करंट कांस्टेंट है हर चीज के लिए, तो करंट की वैल्यू क्या है 0.01 एम्पियर। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01 करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो सीधा 100 के अक्रॉस तुम्हारा वोल्टेज कितना हो गया, 1 वोल्ट। क्या समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल, तुम लोग का करंट हर एक के लिए कांस्टेंट है तो वो करंट और तुम्हारा रजिस्टर हर एक की वैल्यू का दिया है, सब वैल्यू का रजिस्टर ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया और उसके अक्रॉस करंट हम लोग को मालूम है सबको क्या फ्लो हो रहा है। तो 0.01 इंटू 100 करूंगा तो 1 वोल्ट मिलेगा, 0.01 इंटू 400 करूंगा तो 4 वोल्ट मिलेगा, 0.01 इंटू 200 मल्टीप्लाई इट बिकम 2। तो एक साथ अभी टोटल ऐड करो, V का फॉर्मूला सबको मालूम है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो 100 के अक्रॉस 1 वोल्ट था, 400 के अक्रॉस 4 था और 200 के अक्रॉस 2 आ गया। तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7। तो हमारा टोटल वोल्टेज प्रॉपर स्प्लिट अप हो रहा है। हमारा कंसेप्ट बराबर बोल रहा है कि V इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3। तो हमारा आंसर भी करेक्ट है और हमारे कंसेप्ट क्लियर? यस। कितने जन को नहीं समझ में आया? इफ एनीवन प्लीज टेक्स्ट मी। कुछ भी डाउट? सर लास्ट वाला पार्ट VR1 इज इक्वल टू 100 into I। नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी, कोई है कि आगे बढ़े? सब समझ गया बेटा 0.01 एम्पियर कैसे आ गया बेटा? 7 डिवाइड बाय 700 टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला है। आदित्य, आदित्य टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ? सबको ऐड किया 700 आ गया, समझ आ रहा है? सबको ऐड किया 100 प्लस 400 प्लस 200 बराबर है।
तो ओम्स लॉ पूरे सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं, पूरे सर्किट का ओम्स लॉ, पूरे सर्किट पे V इज इक्वल टू IR मालूम है, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है 7 वोल्ट और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 700, तो 7 डिवाइड बाय 700 दैट इज योर व्हाट 0.01 एम्पियर। और हमें ये भी मालूम है कि पूरे सर्किट में सीरीज है, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है, करंट सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, तो हर अप्लायंस के अक्रॉस सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो 100 के अक्रॉस भी 0.01 फ्लो हो रहा है, 400 के अक्रॉस भी और 200 के अक्रॉस भी। 0.01 एम्पियर 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वोल्टेज मिल जाएगा, 0.01 400 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 400 के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा, 0.01 करंट 200 के अक्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 के अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा। तो सबके वोल्टेज हम लोग को मिल गए 1 4 2, वही हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके सर, सर। थैंक यू सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। गुड। अभी इसी Yes, sir. सीरीज है तो अभी पैरेलल का भी देखते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल। हाँ ये सर। तो बेटा ये न्यूमेरिकल घर Yes, पे sir. इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने, अदरवाइज बेटा मैं कितना भी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तुम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, दैट विल बी ट्रबल फॉर यू। और प्लीज ध्यान दो, 1 क्वेश्चन 101% हर साल आता है 3 मार्क के लिए गारंटेड, ये साल 5 मार्क के लिए आया था। सो प्लीज 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 प्रैक्टिस, ठीक है, अदरवाइज मैं भी हेल्प नहीं कर सकता अगर तुम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Question is what? Find the current in the circuit below and the current passing through each resistor. बेटा अभी वही टाइप में हम लोग देख रहे हैं, देखो 7 वोल्ट दिया है लेकिन तीनों रजिस्टर अभी कैसे कनेक्ट किए हैं, पैरेलल कनेक्ट, ठीक है, तो 7 वोल्ट और ये पैरेलल में। तो हमें अभी हाँ सर। पैरेलल का भी फॉर्मूला डेराइव किया था, दैट ऑल वी नो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे करके टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालेंगे। जो अगर कैलकुलेट करोगे, करो कोशिश, एक सेकंड, थोड़े सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ। 1/100 प्लस 1/400 प्लस 1/200 कितना आ रहा है? सर 400/7। 400/7 कितने जन को आया? 400/7 चेक। सर मेरे को आया। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। मुझे भी आया सर। भी आया आंसर, देखो मैं नीचे दे रहा हूँ, द आंसर इज करेक्ट 400/7। इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे भी देखो आंसर में लिखा है 1/R इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/400 प्लस 1/200। एलसीएम करो, कैलकुलेशन करो परफेक्टली, तो 1/R जो रहेगा एक्चुअली 1/R इज इक्वल टू 7/400 होगा। समझ आ रहा है? 1/R इज इक्वल टू 7/400, और इनवर्स करोगे, उल्टा करोगे, क्योंकि 1/R के टर्म में नहीं मुझे चाहिए, 1/R इनवर्स रेसिप्रोकल में नहीं चाहिए, इसको प्रॉपर इनवर्स करना पड़ेगा। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस व्हाट वी गेट 400/7। क्लियर? टिल हियर एनी डाउट? टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? टोटल सर्किट 400/7। यहाँ तक ठीक है ना? अभी मुझे बताओ, अभी हमें क्या मिला? रेजिस्टेंस मिलेगा, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मिला, टोटल सर्किट का वोल्टेज मालूम है, तो टोटल करंट निकाल सकते हैं। यस, समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मीन? हाँ, समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस अभी तो कैलकुलेट किया 400/7, टोटल हाँ, सर। रेजिस्टेंस मिल गया। टोटल वोल्टेज मालूम है 7 वोल्ट, तो हम लोग टोटल करंट निकालेंगे, फिर से ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, करेक्ट है? V इज इक्वल टू IR। तो मुझे बताओ यहाँ पे I निकालना है तो क्या हो जाएगा? V/R। तो V/R, तो V की वैल्यू 7 है, और 7 डिवाइड बाय 400 डिवाइड बाय 7। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ यू चेक यहाँ पे आंसर देखो, मैंने बोला और आंसर भी यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हूँ। 49/400। 7 डिवाइड बाय 400 डिवाइड बाय 7, तो इनवर्स करोगे तो 7 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, एंड द करंट विल बी व्हाट? I इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 400। गुड, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। करंट मालूम पड़ेगा 49 डिवाइड बाय 400। टिल हियर एनी डाउट बेटा? No, sir. एनी डाउट? नो सर। ओके, नाउ जरा मैं सर्किट के ऊपर आ रहा हूँ फिर से, नीचे का आंसर बताने के पहले सर्किट के कंसेप्ट में जरा फिर से आ रहा हूँ। नाउ मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है पैरेलल में? सो पैरेलल में करंट कांस्टेंट है। पैरेलल में करंट नहीं सर, कांस्टेंट होता है कि हाँ, वोल्टेज वोल्टेज। हाँ, मेन कंसेप्ट भूलो मत, कंसेप्ट रॉन्ग, आंसर रॉन्ग।
दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग बार बार, ट्वाइस या थ्राइस क्यों मैं बोल रहा था, ये याद रखो। हियर वोल्टेज इज कांस्टेंट, क्लियर, वोल्टेज कांस्टेंट है। अभी मुझे बताओ 100 के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, 7 वोल्टेज ही रहेगा। 400 के अक्रॉस 7 volts. 7 ही रहेगा। 200 के 7. अक्रॉस भी कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। तो तुम्हें 100 के अक्रॉस वाला वोल्टेज कितना है, 7 है। तो क्या 100 के अक्रॉस करंट निकाल सकते हो, क्योंकि V तो वैल्यू हमें 7 मालूम है, R की वैल्यू 100 मालूम है, तो करंट भी निकाल सकते हो। 100 के अक्रॉस 7 वोल्ट जा रहा है, ये समझ में आ गया। और खुद का रेजिस्टेंस 100 का 100 है, करेक्ट है। खुद की वैल्यू उसकी कितनी है, सेल्फ की R की वैल्यू 100 है, और उसके अक्रॉस का पोटेंशियल V7 है। तो दो वैल्यू आ गई तो तीसरी ओम्स लॉ से निकालोगे, करेक्ट माय पॉइंट। सो अपने आप हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे करंट निकालना है 100 के अक्रॉस, तो दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो 100 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो रहा है, 7, और उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है, 100। तो 7 अपॉन 100 दैट इज योर व्हाट, करंट अक्रॉस द 100, करेक्ट, ठीक है, करंट, एग्जैक्टली, गुड, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा। सिमिलरली वी आर डिस्कसिंग सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में भी क्या करेंगे कि 400 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 7, और उसका खुद का रेजिस्टेंस व्हाट वी हैव, 400। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन 400, सॉरी, V अपॉन R। तो V हमारा वैल्यू है, वोल्टेज 400 के अक्रॉस 7 है, और खुद का रेजिस्टेंस 400 है, तो 7 डिवाइड बाय 400 10 सेकंड का। और सिमिलरली थर्ड वन भी हम लोग बोलेंगे 7 अपॉन 200। तो हर एक के अक्रॉस अगर मुझे करंट निकालना है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो 7 अपॉन 100, 7 अपॉन 400 और 7 अपॉन 200। बेटा बस सिंपल यही कंसेप्ट है। कांस्टेंट वैल्यू हमें मालूम है हर एक के अक्रॉस की, तो 700 के लिए भी है, 400 के लिए भी, 200 के लिए, और उनकी सबकी खुद की रेजिस्टेंस की वैल्यू है, खुद की रेजिस्टेंस वैल्यू दी है, और कांस्टेंट हर जगह पे क्या अप्लाइड हो रहा है वो तुम्हें मालूम है। तो 7 यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज। तो वोल्टेज और रजिस्टर, वोल्टेज और रजिस्टर दो हर चीज के लिए दिए हैं, तो हर एक का रेशियो निकालना है, दैट इज योर I is equal to 7 upon 100, I is equal to 7 upon 400, I is equal to 200 upon, sorry, 7 upon 200, दैट्स वे। तो करंट पूरे सर्किट का निकाल दिया, और वही अगर टोटल निकालेगा तो जितना हमें करंट मिला उसका आंसर भी मिल जाएगा, दैट्स इट, हो गया। तो वही उन्होंने आंसर नीचे भी दी गई, if you observe here, answer becomes same, 7 upon 100, 7 upon 400, 7 upon 200, that's it. Any doubt for this question, No, sir. student? No, sir. श्योर, समझ में आ रहा है बेटा? No, sir. Are you sure, or you understand the concept? प्लीज कंसेप्ट याद Yes, रखो, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ बोथ दिस कंसेप्ट वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट पार्ट, अभी कॉम्बिनेशन में। अभी दो सीरीज में दिए और क्या दिए, दो पैरेलल में दिए ना। पे अटेंशन, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी न्यूमेरिकल हो, we have to calculate first total resistance. If we calculate the total resistance, then only we will calculate the total current, क्योंकि टोटल वोल्टेज दिया रहेगा, या फिर इन सम क्वेश्चन, सम न्यूमेरिकल, करंट वोल्टेज की जगह पे करंट दिया रहेगा और हमें वोल्टेज निकालने के लिए कहेंगे। मतलब जो V6 वोल्ट दिया है उसकी जगह पे करंट इन एम्पियर दे देंगे, और एम्पियर दे दे के डिफाइन बोलेंगे वोल्ट निकालो पूरे सर्किट का, ऐसे भी हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन कंडीशन टू कंडीशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। सो कैसे, पहले दो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड, सीरीज। सो फर्स्ट पोर्शन, सो लेट कंसीडर 100 और 400, फर्स्ट वाला उसको R1 कंसीडर किया, 200 एज R2, और थर्ड वन 100 is what, R3, एंड फोर्थ वन 400 as, sorry, 200 as R4, like that। तो हम लोग बोल सकते हैं सीरीज RS। तो RS is nothing but सीरीज, सीरीज में दो ही है, तो वी आर इक्वेटिंग दैट 100 plus 400, तो RS is equal to 100 plus 400, that is your 500, that is your first part, ठीक है ना। सेकेंड में, सेकेंड के बाकी के दो रजिस्टर एक दूसरे से कैसे है, पहले 100 और 200 बोथ आर कनेक्टिंग टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एक दूसरे से पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल होके कंबाइन होके फिर जो पहले वाला पार्ट और सेकंड वाले पार्ट से एक ही पॉइंट में कनेक्टेड है। कंसेप्ट ठीक से समझो, 100 और 200 एक दूसरे से कनेक्ट होके जो तुम्हारा 100 और 400 के कंसेप्ट में एक दूसरे के एक ही पॉइंट में कनेक्ट हो रहे हैं। 100 और 200 का पॉइंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, जो कि 400 का एंड वाला पार्ट है। मतलब पहले 100 और 200 को कैलकुलेट करके जो स्टार्टिंग का आंसर है उन दोनों में ऐड करना है, ठीक है।
So first वाला 100 and 400 that become 500. Now we have to evaluate 1 upon 100 plus 1 upon 200. उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? ठीक है, पैरेलल में दो जो पैरेलल है उनका आंसर क्या आ जाएगा? 100 and 200 it's become what we get? The answer what we have? 200 by 3. 200 by 3. If you observe, correct, 200 by 3. Okay. Now ये 200 by 3 और जो पहला वाला जो सीरीज में मिला था वो उन दोनों को ऐड करना है. जरा डायग्राम में देखो, मैंने दो डायग्राम यहाँ पे क्यों दिखाया है? क्योंकि स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ आया. दो रेजिस्टेंस से रिक्वायर R1 आ गया और ऊपर के दो पैरेलल से रिक्वायर R2 आ गया और दोनों एक दूसरे से एक ही पॉइंट में कनेक्टेड है. और दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है. जरा ये कंसेप्ट समझने वाली बात है. The R1 require and R2 require both are connected to series. तो दोनों का आंसर हम लोग कैसे फिर से ऐड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज. तो फर्स्ट वन 500 एंड सेकंड वन 200 by 3. दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर बिकम लाइक दिस. तो 500 plus 200 by 3. Here the total resistor R is equal to 500 plus 200 by 3. The total resistor now what we get? 170 divided by 3. The total resistor of circuit what we get?